Hey Kushagra. Aditya, can you put yourself on mute, please? Let me just do that for you. Okay. Okay. So आज की जो क्लास है, we'll be talking about triads. ठीक है. So I'm guessing कि आपने triads के बारे में सुना होगा. So triads अगर नहीं पता तो then definitely watch my masterclass one. जो first masterclass है उसमें I actually broken down triads into the theory angle. कि triads क्या होता है. Basically triads is a 3-note chord. Okay, but not just any 3-note chord because उसमें एक और रूल होता है कि the notes जो 3 notes होते हैं they need to be spaced, they need to be stacked in thirds. मतलब उनके बीच का जो gap होता है, interval होता है, it needs to be at least a minor third and maximum a major third. ठीक है, so basically minor third means three semitones and major third means 4 semitones. So जैसे A से लेके B is a whole note, right? उसके बाद अगर मैं एक और C लेता हूं A to C, that's a minor third. A to C sharp is a major third. So ये जो gap होता है ना, that's basically what intervals. अगर intervals समझना चाहते हो then definitely I think I've explained that in my masterclass video 1 as well. So masterclass जो theory वाला video 1 है chord construction, उसको देख लेना, उसे पता लग जाएगा. So basically that's what a triad is. A triad is a 3-note chord. तो हमारे जो triads होते हैं, जो main triads, main क्या, the only triads that we have there are 4 triads. There's the major triad, there's the minor triad, and बाकी 2 triads के नाम कौन बता सकता है मेरे को? Diminished or augmented. Fantastic. So the other 2 triads are diminished and augmented. Okay, so हमारी जो suspended chords होती हैं, those are also 3-note chords, but they are not triads. Okay, because they are not really stacked in thirds. मैंने बताया ना, triads के 2 conditions होते हैं. पहला तो 3 notes होने चाहिए, दूसरा they need to be stacked in thirds. तो अगर suspended chords की theory भी समझना चाहते हो तो I think masterclass जो 2 video है उसमें मैंने पूरा suspended बताया हुआ है और ये भी बताया कि why suspended chords are not triads. वो पूरा मैंने explain किया हुआ है. So just watch those videos. Those are in the academy. Okay, masterclass में जाओगे 1, 2 जो है. So triads मैंने बताया 3-note chords हैं, they are stacked in thirds. Okay, now जो chords होती है ना, chords, I'm just telling you some basics जो आपको पता होना चाहिए. उसके बाद जाके we'll get into actually playing the triads on the guitar. ठीक है. So triads में there is this thing called inversions as well. In fact triads नहीं, हर chord में there is this thing called inversions. तो अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि let's take any major chord, let's take the F major chord. तो F major chord, F major scale, can someone tell me the F? So Nimit, can you tell me the F major scale? Not sure of the scale, sir. Not a problem. Not a problem. Play the chord. That's okay. No. Don't play the chord. No, I'm just saying because you said no, you're an intermediate. So if you're an intermediate guitar player, I expect you to know all your major scales. ठीक है, that's all right. That's all right. Major scales जो है ना, ये actually it's covered in my stage 2, stage 3, but even in my master class. Again, watch my master class, man. That's what I'll say. Watch all the master classes, and you'll be prepared with everything. Kushagra, I'm guessing you know the F major scale. What's the F major scale? F major, G minor, A minor. Tell me the scale. B flat major. Tell me the scale, not the diatonic chords. Okay. F, G, A, B flat, C, D, E, F. Fantastic. ठीक है, so that's your F major scale. अगर आपको F major scale नहीं आता, again watch the masterclass videos. But basically it's the same rule, right? Whole, half, whole, half, जो भी होता है. But I always tell all my students कि don't be dependent on formulae for remembering things like scale. You should be knowing them like this. F, G, A, B flat, C, D, E, F. जैसे कुशाग्र ने बोला ना, exactly like that. You should be knowing them. ठीक है? तो we know कि F major chord जो होती है is constructed using the notes of the F major scale. Correct? So you know the formula for that? What's the Murli? What's the formula for making a major chord out of a major scale? 1, 3, and 5. Perfect. So we take the root, the first, the third, and the fifth of any major scale. उससे हमारा F major chord बन जाएगी. तो F major scale तो हमारा था F, G, A, B flat, C, right? So F, G, A, B flat, C. तो हमने ये 3 नोट्स अगर लिए F, A and C, इसको हमने प्ले कर लिया तो हमारी F major chord बन जाएगी. ठीक है. Now in music there is this thing called inversions. Inversions का basically मतलब होता है कि आपका ये 3 नोट्स हैं F, A, C, तभी इसको ट्रायड बोलते हैं, 3 नोट कॉर्ड है. ठीक है. एंड अगर तो आप F, A, C 3 नोट्स प्ले करते हो इन एनी ऑर्डर, इट्स एन F मेजर कॉर्ड.
ओके आप कोई भी ऑर्डर में प्ले करो, इट्स एन एफ मेजर कॉर्ड। हम जब कॉर्ड प्ले करते हैं हम कभी देखते नहीं है, पर हमारे को हमेशा देखना चाहिए हम नोट्स क्या प्ले कर रहे हैं, ठीक है। बट हम देखेंगे तो इल बी इन रैंडम ऑर्डर, ये तीनों नोट्स कभी एफ 2 बारी होएगा, कहीं ए 2 बारी होएगा, कभी सी 2 बारी होएगा, जैसे भी डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन में, ठीक है। लेकिन व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज आपका कौन सा नोट सबसे लोएस्ट नोट है, मतलब किस नोट को आप एज बेस प्ले कर रहे हो। तो अगर मैं एफ मेजर प्ले करता हूं विद द एफ बीइंग द लोएस्ट नोट, तो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द रूट पोजिशन। ओके, मैं अभी आपको बताऊंगा, आई जस्ट डेमोन्स्ट्रेट टू यू दैट एज वेल। लेकिन अगर आपका लोएस्ट नोट मतलब जो सबसे बेस नोट है, वो अगर आप रूट प्ले कर रहे हो, एफ ए सी में 3 नोट्स है ना, एफ ए एंड सी। एफ इज द फर्स्ट नोट, ए इज द थर्ड नोट एंड सी इज द फिफ्थ नोट। अगर आप कॉर्ड प्ले करते हो विद द रूट बीइंग द लोएस्ट नोट, इट्स कॉल्ड रूट पोजिशन। अगर आप कॉर्ड प्ले करते हो विद द थर्ड, जो सेकेंड नोट था हमारा, थर्ड मतलब 1 3 5 का थर्ड, ठीक है, ये 3 नोट्स हैं, इसमें जो बीच वाला नोट है सेकेंड नोट, इट्स द थर्ड, राइट। सो इसको अगर आप लोएस्ट प्ले करते हो, मतलब अगर एफ ए सी में आप ऐसे प्ले करते हो कि ए सबसे नीचे है, फिर एफ या सी कुछ भी है, लेकिन ए सबसे नीचे है, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट इन्वर्जन। ओके, एंड अगर आप प्ले करते हो विद द सी बीइंग द लोएस्ट, मैं उंगलियां ऐसे करके बता रहा हूं, बट आई होप यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इफ सी इज माय लोएस्ट नोट, What do you mean by lowest? so when I say lowest note is कि जब मैं किसी कीबोर्ड प्ले करता हूं, so the note which is on my left, extreme left, so that's the lowest note, because all the notes are in order, right? जैसे for example this is my E, top string open is my E, ठीक है, this is also an E, this is also an E, this is also an E. So जो lowest, सारे notes में जो सबसे lowest नोट है, that is what I mean. Basically it's actually what I mean to say is जो bass note है, you can think of it like the bass note, but I didn't want to use the word bass because हो सकता है कि आप treble strings में play कर रहे हो, so you're not really playing any bass strings, but still you can say the lowest note is like the bass note in terms of जो pitch frequency है, जो lowest, that's what I mean. Does that answer your question, Jacqueline? Yeah. Fantastic. ठीक है, सो इफ 3 नोट्स में से रूट नोट इज द लोएस्ट नोट, इट्स द रूट पोजिशन। इफ द थर्ड नोट जो है हमारा, या सेकेंड नोट और थर्ड आई मीन इंटरवल, इज द लोएस्ट नोट, इट्स द फर्स्ट इन्वर्जन। इफ द सेकेंड नोट और द थर्ड नोट और द फिफ्थ इंटरवल इज द लोएस्ट, इट्स द सेकेंड इन्वर्जन। ठीक है, तो ये इन्वर्जन होते हैं। नाउ the interesting thing is, अगर मैं मान लो F major play करता हूं, so a lot of us play the F major like this. By the way, just to let you know, अभी हो सकता है because of the glare या कुछ भी आपको ठीक ना दिख रहा है, I think ठीक ही दिख रहा है, but don't worry, the recording is absolutely clean. ठीक है, so अगर आपको fretboard ठीक नहीं दिख रहा, don't worry, the video is going to be up as well, तो आप उसमें देख सकते हो। But let's say I play the F major chord, since we taking F, तो F major हम ऐसे play करते हैं ना, या तो बार करते हैं, ऐसे करते हैं। Now इसके केस में हम टॉप स्ट्रिंग प्ले नहीं करते बिकॉज इट्स एन ई नोट, राइट, सो वी डोंट हैव ई इन एन एफ मेजर। लेकिन अगर मान लो मैं फर्स्ट 5 स्ट्रिंग्स प्ले करता हूं, तो मेरा लोएस्ट नोट इज ऑन द 5th स्ट्रिंग, करेक्ट, लोएस्ट नोट 5th स्ट्रिंग है। 5th स्ट्रिंग का कौन सा नोट प्ले कर रहा हूं मैं, द 3rd फ्रेट। सो निमित, व्हाट नोट इज दैट? सी, करेक्ट। सो इस कॉर्ड में, इस शेप में, आई एम एक्चुअली प्लेइंग एन एफ मेजर ओनली, लेकिन माई लोएस्ट नोट हैपेंस टू बी सी। एफ ए सी में से लोएस्ट नोट सी है, तो कौन सा इन्वर्जन हुआ? Second inversion, correct, it's the second inversion. That's what I meant. Now if let's say I play F like this, my lowest note is the F bass note, ये नोट आ गया मेरा। Now suddenly I'm playing the root note, so it's my root position. Okay, another example that you can take, which I think is a fantastic example, is if you look at a C major chord. Okay, ये हम C major ऐसे play करते हैं, right? Now let's say I start with the 5th fret. I play this string, I start with this 5th string. So if I play string number 5, 4 and 3, okay, C major हम ऐसे पकड़ते हैं ना, everybody hold the C major like this. If I play string number 5, 4, 3, I'm playing the notes C, E and G.
So if I'm playing just these three strings, 5, 4 and 3, I'm playing 5 C, E and G. So this is the root position of C, right? C, E and G. C, D, E, F, G. तो C मेजर में 3 नोट्स होते हैं C, E, G. अगर मैं सिर्फ स्ट्रिंग नंबर 5, 4, 3 प्ले करता हूं, I'm actually playing it in root position C, E, G. Now if I play string number 4, 3, 2, I'm playing E, G and C. So that's the first inversion एक तरह से नहीं, it is the first inversion. Now if I play string number 3, 2, 1, I'm playing G, C and E. So that's the second inversion. तो हमारी C major जो chord है ना, इसमें अगर हम 3 strings के sets में divide कर देंगे, तो एक तरह से we playing the root inversion, the first inversion and the second inversion. I'm just saying कि it's we should always start analyzing chords कि हम क्या कर रहे हैं, and that's what you'll realize. तो इसलिए I think the C major is a very good example, क्योंकि इसमें हम तीनों inversions play कर रहे हैं just on different sets, strings. Okay, so that is what the concept of inversions is. Again, मेरे से first batch में भी लोगों ने पूछा था कि does it matter कि मैं C, E, G की जगह अगर मैं C, G, E play कर दूं? So C, E, G is the root position, right? In C major. अगर मैं C को lowest note रखूं, लेकिन मैं E, G की जगह G, E play कर दूं, so will that change? The answer is no, because the only thing which matters is कि आपका lowest note क्या है. बाकी notes का order कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन that might change the voicing कि मैं चाहता हूं कि मैं highest note क्या चाहता हूं. ठीक है, जब jazz music होता है ना, jazz music में there is this thing called voice leading. So basically आप जिस तरह से lowest note होता है उस तरह से highest note भी होता है. Highest note is जनरली आपका फर्स्ट स्ट्रिंग या सेकंड स्ट्रिंग जिस पे भी, तो दैट नोट एक्चुअली इंपैक्ट्स कि आपकी मेलोडी किस तरह से मूव कर रही है. सो अगर आप वॉइस लीडिंग थोड़ा और समझना चाहते हो ना, सो वॉच माय मास्टर क्लास ऑन हाउ टू रीहार्मोनाइज अ सॉन्ग. उसमें मैंने वॉइस लीडिंग थोड़ा सा बताया हुआ है, जिसमें मैंने प्रिटी वुमन का मैंने एक्सप्लेन किया कि मैंने किस तरह से रीहार्मोनाइज किया था. सो आई हैव एक्सप्लेन्ड वॉइस लीडिंग क्या होती है उसमें, तो वो वीडियो देखना मास्टर क्लास. ठीक है, सो इट डजंट मैटर कि आपका बाकी नोट्स का ऑर्डर क्या है, आपकी थोड़ी सी साउंड चेंज हो जाएगी, सी, ई, जी बजा रहे हो कि सी, जी, ई बजा रहे हो, बट इट्स स्टिल द रूट पोजिशन, क्योंकि हमारा लोएस्ट नोट इज व्हाट डिफाइंस की इन्वर्जन कौन सा है. डज दैट मेक सेंस कि बाकी नोट्स का ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट. अब जैसे मैं गिटार प्ले करता हूँ, गिटार में तो हमने कभी ध्यान भी नहीं दिया ना, जब हम सी मेजर प्ले करते हैं, आई एम श्योर नोबडी नोटिस कि हम पहले रूट पोजिशन प्ले कर रहे हैं फर्स्ट, नोबडी नोटिस, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, कभी ध्यान ही नहीं दिया हमने. लेकिन कीबोर्ड में ये सब चीजें मैटर करती हैं, बिकॉज कीबोर्ड में यू प्लेइंग जस्ट 3 नोट्स, उसमें द ऑर्डर कैन चेंज. सॉरी, इफ द ऑर्डर चेंजेस देन द साउंड कैन चेंज. ओके, सो सोनिकली orally it might make a difference कि क्या बज रहा है, लेकिन theoretically as long as the root note is the lowest note is the root first or the second, that's what defines कि inversion क्या है. The other notes won't. Concept wise, have you understood what is inversions? Right? Now I'll tell you the interesting thing. The interesting thing is कि we need to figure out the triads on the guitar, how to play them. ठीक है, those are very very important. In fact, they are so important. Actually, it's more of a triads is more of a late intermediate, early advanced kind of a concept. I mean, I won't really say early advanced. I would say intermediate को तो पता होना चाहिए definitely. Advanced तो definitely you should know. लेकिन Aditya, you want to say something? I don't know. Okay. Sir, I just started my stage 2 course. Okay. I can't understand anything. Believe me, even if you've started your stage 2 course, you should understand it. Don't worry. Anyways, जैसा मैंने बोला कि recording is going to be there on the website. I'm sorry, on the academy in maybe 1 hour, 1.5 hours. So upload करने में थोड़ा समय लग जाता है process करके. But don't worry, आज रात तक तुम देख लेना इसका वीडियो को फिर से देख लेना. And जैसा मैंने बोला है, watch my master classes. All the master classes देखो in order, सब समझ में आ जाएगा. ठीक है? Okay. But let me just tell you something. Even though this is what I was trying to say. Even though it's an intermediate topic, late intermediate topic, I have had some students in the past, jinko from day one I started triads. So it was like an experiment that I did. कि instead of teaching them C major and D major and E major जो normal positions होती हैं, I actually started them with triads first. Because I really wanted, because I'm always experimenting with students, guinea pigs like that. ठीक है,
कैसा कैसा करेंगे, बट बिलीव मी इट्स एक्चुअली वर्कड. सो आई हैड स्टूडेंट्स जिनको ट्रायड्स प्ले करने आते थे, बट दे डिडंट रियली नो कि सी मेजर ऐसे पकड़नी होती है, ए मेजर ऐसे पकड़, दे डिडंट रियली नो दैट, but they knew कि ट्रायड्स और पोजीशन क्या होती हैं, and they're fantastic guitar players यार. So I'm just saying कि it's an important topic. So Aditya, even though you're stage 2, had you been stage 1 as well, तब भी this is very important. तुम कर सकते हो. Okay. So let's quickly get into how to play them. Now you've understood the concept of inversions. हम inversions को कैसे identify करते हैं with the lowest note. ठीक है. लेकिन अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि हमारे को ट्रायड्स प्ले करने on the first 3 strings. ठीक है, पहली 3 स्ट्रिंग्स में हमारे को ट्रायड्स प्ले करने हैं मान लो, तो उसके लिए यू विल नीड टू नो कि हमारा रूट नोट कहां पे आ रहा है. तो रूट नोट हमारे कौन सी स्ट्रिंग पे आएगा? इट विल बी ऑन द 3rd स्ट्रिंग. करेक्ट. रूट नोट इन सेंस कि लोएस्ट नोट. अगर मैं फर्स्ट 3 स्ट्रिंग्स में प्ले कर रहा हूं ट्रायड्स, तो माय लोएस्ट नोट इज गोइंग टू बी ऑन द 3rd स्ट्रिंग. करेक्ट. लेकिन अगर मैं पूछता हूं कि आपको फर्स्ट स्ट्रिंग के नोट्स में ज्यादा कंफर्टेबल हो कि 3rd स्ट्रिंग के नोट्स में ज्यादा कंफर्टेबल हो, I'm guessing the answer is going to be first string, because first string के हमारे को नोट्स पता होते हैं, टॉप स्ट्रिंग के साथ सेम होते हैं, लेकिन 3rd string के नोट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल मोस्ट ऑफ अस, राइट? इवन दो यू शुड बी, बट जनरली नहीं होते. इसीलिए जस्ट कीप योर कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्जन थोड़ा साइड में. ठीक है. वी विल बी रेफरेंसिंग ऑल द ट्रायड्स बेसिस द फर्स्ट स्ट्रिंग ओनली. थोड़ा सा अभी लग रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, अभी सब समझ में आ जाएगा, डोंट वरी. ठीक है. नाउ अगर मान लो आपने कोई भी कॉर्ड प्ले करनी है, सो टेल मी एनी मेजर कॉर्ड, एनी मेजर कॉर्ड. जी मेजर. जी मेजर. ओके. सो जी मेजर जो है, जी मेजर के नोट्स होते हैं हमारे जी, बी एंड डी, राइट? जी मेजर्स के लिए जी, ए, बी, सी, डी, जी, बी, डी, ये 3 नोट्स होते हैं. अगर मेरे को जी मेजर प्ले करनी है इन अ बार कॉर्ड, सो दिस इज हाउ आई प्ले अ जी मेजर. This is how I play a G major, right? Now, if I just play the first 3 strings of a G major, if I just play the first 3 strings of a G major, this is what I'll be playing. Right? ये मेरी G major होती है. इसमें से मैंने ये ऊपर की स्ट्रिंग्स हटा दी, मैं सिर्फ पहली 3 स्ट्रिंग्स ही प्ले कर रहा हूं. So that's a G major एक तरह से. Now, if I were to study the notes as well, no? We'll realize कि हम तीनों जो हमारे G, B, D हैं वो प्ले कर रहे हैं. सो फर्स्ट स्ट्रिंग में हम G प्ले कर रहे हैं, सेकंड स्ट्रिंग में हम D प्ले कर रहे हैं, और थर्ड नोट में हम B प्ले कर रहे हैं. राइट? B, D, G, ये हम 3 नोट्स प्ले कर रहे हैं, B, D, G. नाउ इफ आई वर टू यूज माई कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्जन्स, आई एम स्टार्टिंग, माई लोएस्ट नोट इज द B नोट. राइट? सो दिस इज व्हाट इन्वर्जन? फर्स्ट इन्वर्जन. It's the first inversion. Technically it's the first inversion. लेकिन अब इसको पता करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि मेरा 3rd string का ये नोट B है. Now what is easier for me to remember कि मेरा 3rd string B है कि मेरा first string G है? What is easier? फर्स्ट स्ट्रिंग जी. First string G, right? So इसीलिए my method of teaching triads is not by the lowest note. My method for this class for teaching triads is referencing हम first string से करेंगे. So this is technically it's the first inversion, but don't think of it like a first inversion. Think of it like this. हम तो अपने आप को ना थोड़ा recalibrate कर रहे हैं. हम calibrate कैसे कर रहे हैं कि हमारा जो reference note है वो first string पे क्या है? Is it the root? Is it the 3rd or is it the 5th? तो इस position में हमारा reference note हम first string ले रहे हैं. तो first string पे हम root play कर रहे हैं, 3rd प्ले कर रहे हैं कि 5th प्ले कर रहे हैं? 3rd. फर्स्ट स्ट्रिंग पे हम नोट कौन सा प्ले कर रहे हैं? फर्स्ट स्ट्रिंग पे नोट कौन? रूट प्ले कर रहे हैं, राइट? सो दैट्स हाउ आई वांट यू टू रिमेंबर. डोंट थिंक ऑफ इट लाइक द फर्स्ट इन्वर्जन, क्योंकि फर्स्ट इन्वर्जन के लिए आपको लोएस्ट नोट देखना पड़ेगा 3rd स्ट्रिंग पे. अभी मैं सिर्फ बोल रहा हूं कॉन्सेप्ट वाइज रूट इन फर्स्ट एंड सेकंड इन्वर्जन याद रखो, लेकिन अभी आई वांट यू गाइस टू थिंक ऑफ इट लाइक कि मेरा जो रेफरेंस नोट है वो फर्स्ट स्ट्रिंग पे होना चाहिए. तो फर्स्ट स्ट्रिंग पे मेरा रेफरेंस नोट रूट आ रहा है, 3rd आ रहा है कि 5th आ रहा है? तो इस केस में हमारा G नोट आ रहा है, तो दैट्स द रूट. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट ट्रायड पोजिशन दैट आई वांट यू टू रिमेंबर. ठीक है, ये हमारी पोजिशन जो है इसको हमने याद कैसे करना है. एंड इस सब के आपको जो चार्ट्स होंगे, चार्ट्स अभी आपको राइट आफ्टर द क्लास आपको चार्ट्स भी मेल हो जाएंगे, PDF चार्ट्स होंगे, उसमें आपको सारी शेप्स बनी होंगी. ठीक है,
सो हमने आज बेसिकली 3 शेप्स याद रखनी है. दिस इज द फर्स्ट शेप. तो हम कैसे याद रखेंगे कि हमारा कोई भी कॉर्ड का जो रेफरेंस नोट है वो पहली स्ट्रिंग पे रूट है कि थर्ड है कि फिफ्थ है. अब इस G में हमारा रूट नोट फर्स्ट स्ट्रिंग पे आ रहा है थर्ड फ्रेट पे, तो ये शेप है हमारी. तो बेसिकली हमने पहली 2 स्ट्रिंग्स पे दबाया हुआ है एक उंगली से, और थर्ड स्ट्रिंग पे हम अपनी मिडिल फिंगर को एक फ्रेट आगे प्ले कर रहे हैं. दिस इज व्हाट द फर्स्ट शेप इज, which is technically the first inversion, but we're not thinking inversions. We are thinking reference note is the root. अब मेरे को कोई बोलता है कि यार A मेजर प्ले करो, मेरे थिंकिंग क्या आएगी, A मेजर का मेरा रूट नोट होता है A. तो अगर मेरा रेफरेंस नोट A है फर्स्ट स्ट्रिंग पे, वो ये फिफ्थ फ्रेट पे होता है, तो आई जस्ट प्ले दिस शेप. दैट्स माय A मेजर कॉर्ड, A मेजर ट्रायड. कोई बोलता है B, ये B, C, D, E, तो ये मेरी पहली शेप होगी, F शार्प, G शार्प. ठीक है, सिंपल सी शेप है. इट्स लाइक ये बार कॉर्ड ओनली, लेकिन मैंने सिर्फ पहली 3 स्ट्रिंग्स प्ले करी है. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट शेप दैट आई वांट यू टू रिमेंबर, विद द रेफरेंस नोट बीइंग द रूट ऑन द फर्स्ट स्ट्रिंग. कूल है. अब देखो, अब अगर मेरे को कोई बोलता है कि रेफरेंस नोट इज द थर्ड ऑन द फर्स्ट स्ट्रिंग, तो शेप क्या होगी? 3 शेप्स पॉसिबल होंगी ना. रेफरेंस नोट इज द रूट, रेफरेंस नोट इज द थर्ड एंड रेफरेंस नोट इज द फिफ्थ. ये 3 शेप्स ही होंगी पॉसिबल. हमारे को तीनों करनी है आज. तो ये पहली शेप थी जिसमें रेफरेंस नोट इज द फर्स्ट. नाउ रेफरेंस नोट इज द थर्ड. उसमें क्या करना है, आपने जो डी मेजर की शेप होती है ना, वो प्ले करनी है. अभी नोट्स मत देखो, अभी सिर्फ जो मैं कह रहा हूं वो सुनो. तो अगर मेरे को कोई बोलता है कि यार प्ले मी जी मेजर अगेन, लेकिन द रेफरेंस नोट इज द थर्ड ऑन द फर्स्ट स्ट्रिंग. तो जी मेजर के नोट्स होते हैं G A B C D, राइट. तो थर्ड नोट होता है मेरा B. तो अगर, तो मतलब मेरे को अपनी पहली स्ट्रिंग पे जो B है वो ढूंढना है. मेरी पहली स्ट्रिंग में B होता है ये नोट 7th फ्रेट पे. अब यहां पे अगर मैं अपनी ये D मेजर की शेप प्ले कर दूंगा ना, सो दिस इज माय सेकंड शेप. दिस इज G मेजर ओनली, लेकिन द रेफरेंस नोट इज द थर्ड ऑन द फर्स्ट स्ट्रिंग. इसको आप चेक भी कर सकते हो. ये मेरी D मेजर है, ये मेरी E मेजर होगी 2 फ्रेट आगे, 1 फ्रेट आगे मेरी F मेजर होगी, 2 फ्रेट आगे मेरी G मेजर होगी. द सेम थिंग, राइट. D E F G. अभी मैं सिर्फ शेप याद दिला रहा हूं. ठीक है. सो अब हमने करी रेफरेंस नोट बीइंग द थर्ड ऑन द फर्स्ट स्ट्रिंग. हम अभी फर्स्ट स्ट्रिंग पे ही रेफरेंस नोट ढूंढ रहे हैं. अब तीसरी ऑप्शन इज रेफरेंस नोट इज द फिफ्थ, राइट. अब G मेजर का फिफ्थ नोट कौन सा होता है? निमित, व्हाट्स द फिफ्थ नोट इन द G मेजर? D, करेक्ट. ठीक है, तो मैंने अपना D नोट ढूंढा. मेरा D नोट ये रहा 10th फ्रेट पे. ठीक है, दिस माइट बी अ न्यू शेप फॉर यू. एक्चुअली इट्स टेक्निकली नॉट अ न्यू शेप, बट हाँ. तो अगर मेरा रेफरेंस नोट इज द फिफ्थ, देन दिस इज व्हाट आई नीड टू प्ले. तो फर्स्ट स्ट्रिंग में मैं अपनी फर्स्ट फिंगर से वो नोट प्ले कर रहा हूं, विच इज द 10th फ्रेट, और अपनी थर्ड एंड फोर्थ फिंगर से मैं 2 फ्रेट आगे एक स्ट्रिंग ऊपर, तो सेकंड एंड थर्ड स्ट्रिंग पे प्ले कर रहा हूं. ओके, सो दिस आई एम प्लेइंग द सेम G मेजर कॉर्ड, लेकिन माई रेफरेंस नोट इज द फिफ्थ ऑन द फर्स्ट स्ट्रिंग. ठीक है, सो हमने बेसिकली अब 3 शेप्स कर ली हैं. तो अगर मान लो, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. उसके बाद आई वांट द गाइज जिनके पास गिटार्स हैं, आई वांट यू गाइज टू डू दिस एज वेल. लेट्स टेक, मेरे को मान लो मेरे को A मेजर प्ले करनी है. नाउ A मेजर में 3 नोट्स होते हैं, A, C शार्प एंड E. ओके, A, B, C शार्प, D, E. तो 3 नोट्स है A, C शार्प एंड E. तो मेरी पहली पोजीशन होगी जिसमें मेरा रेफरेंस नोट इज A ऑन द फर्स्ट स्ट्रिंग. दूसरी पोजीशन होगी जिसमें रेफरेंस नोट इज C शार्प ऑन द फर्स्ट स्ट्रिंग. एंड तीसरी पोजीशन होगी जिसमें रेफरेंस नोट इज E ऑन द फर्स्ट स्ट्रिंग. तो अगर मैं A ऑन द E स्ट्रिंग लेता हूं, तो मेरी शेप होगी 1 वाली जो थी, जिसमें रूट इज ऑन द फर्स्ट स्ट्रिंग. दिस इज A. ठीक है. सेकेंड शेप होगी जिसमें मेरा थर्ड इज ऑन द फर्स्ट स्ट्रिंग. तो थर्ड मेरी शेप थी डी मेजर वाली शेप. लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं C शार्प ढूंढूंगा. मेरा C शार्प कहां पे होता है? C शार्प इज दिस नोट, 9th फ्रेट. तो यहां पे मैंने अपनी ये वाली शेप प्ले कर दी. दिस इज एन A मेजर ओनली.
अब मुझे दिमाग नहीं लगाने की जरूरत ना, मेरे को कैलकुलेट नहीं करना ए बी बी ए सी डी ई ये नहीं करना, मैं सिर्फ ये बोलूंगा सी शार्प। सी शार्प कहाँ पे है, ये रहा सी शार्प, मैंने शेप प्ले कर दी, काम खत्म। अब तीसरी शेप होएगी जहां पे मेरी तीसरी शेप होएगी जहां पे मेरी ई आती है, तो ई इज द 12th फ्रेट, तो यहां पे मैं तीसरी शेप प्ले कर दूंगा। दैट्स इट। सो ऑल आई नीड टू डू इज नो द नोट्स ऑफ द कॉर्ड एंड देन उन नोट्स को मैंने फर्स्ट स्ट्रिंग में प्लॉट कर दिया एंड वहां पे मैंने अपनी कॉर्ड की शेप को चेप दिया। मैंने सोचा भी नहीं कि मैं क्या नोट्स प्ले कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मैंने सिर्फ ए देखा, सी शार्प देखा, ई देखा, वहां पे पहली पोजीशन लगाई, दूसरी पोजीशन लगाई, तीसरी पोजीशन लगाई, काम खत्म। सो दिस इज हाउ आई प्ले माई ए मेजर। 3 ways to play A major with the reference note on the first string. Right? ये मेरी A पोजीशन होगी, ये मेरी C sharp होगी और ये मेरी E वाली पोजीशन होगी। So I'm just playing same A major chord. Sorry. ठीक है? Now what I want you guys to do is quickly take about 2-3 minutes and find out the 3 positions. I'll find out 3 ways to play, let's say, the F major chord. Let's take the F major chord on the first 3 strings. 3 positions. Find the F major triad. Quickly. पहले हम क्या करेंगे, पहले हम नोट्स देखेंगे F मेजर में क्या नोट्स होने चाहिए, 3 नोट्स। सेकेंड, हम उन 3 नोट्स को प्लॉट करेंगे फर्स्ट स्ट्रिंग पे और वहां पे हम अपनी शेप्स को कॉपी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। गिटार्स निमित के पास है। कुशाग्र, डू यू हैव योर गिटार विद यू? Yes, sir. कूल कूल कूल। जैकलिन, डू यू हैव योर गिटार? Yes, sir, I do. Okay, fantastic. So you can at least play. That's a good thing. आदित्य, तुम टेंशन मत लो। सबसे पहले तो यार इट्स नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक यार, बहुत सिंपल टॉपिक है। अपने दिमाग से बस ये निकाल देना कि तुम्हारे को स्टेज 2 के हो इसलिए नहीं पता होना चाहिए, तुम्हारे को ही पता होना चाहिए ये बात। ये so whenever you're ready, just let me know. Whoever is ready with all 3 positions, just let me know. Okay, so Kushagra is ready. Nimit is working it out. Murli is working on a presentation. I'm just trying to match out with the notes and see on the screen. That's all right. That's all right. कोई फाइट नहीं यार, कोई फाइट नहीं. Don't worry. So in the first position, I mean, being the root on the first string means in the first shape we are going to do a partial bar, same like what we did for the first 2 strings, right? Right. First 3 strings. So Nimit, whenever you're ready. निमित, एक मिनट, कुशागर को मैं पहले म्यूट में करता हूँ यार। निमित, yeah, you ready? I'm ready with the first one. Okay. So I think the 3 notes on the F major chord are F, A, and C. Absolutely correct. So the first string is E, right? So E sharp होता नहीं है, then F will be open played, and the rest 2 notes will be played on the second and the third strings, second frets. What do you mean by सबसे पहले तो डोंट से ई शार्प होता नहीं है, ई शार्प भी होता है, बट डोंट वरी, ओके। बट एफ इज नॉट ओपन, नो? एफ ओपन कैसे होएगा? एफ विल बी द फर्स्ट फ्रेट. First. So Yeah. first 2 strings, first fret, and the third string is the second fret. प्ले करना दोस्त, डोंट टेल मी, जस्ट प्ले इट. ओके, ठीक है, कूल है, ठीक है. सो दैट्स द फर्स्ट पोजिशन. Now, how you will think of it is, मेरा reference note is the root on the first string. Correct? Reference note is F, which on the first string. Now, think about it. दूसरा note क्या होना चाहिए हमारा?
A. ए कहाँ पे होता है? Fifth string. फिफ्थ स्ट्रिंग नहीं, फ्रेट पूछा है, फ्रेट। Oh, sorry. Fifth fret. Fifth Sorry, fret, Fifth हाँ. fret on the first string. हाँ, तो फिफ्थ फ्रेट ऑन द फर्स्ट स्ट्रिंग इज ए। अब वो ए वाला नोट पे हमारी जो दूसरी शेप थी वो पेस्ट कर दे जरा। ओके, आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर अ लॉट यंगर देन मी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पेस्ट कर दे, सो डोंट गेट ऑफेंडेड बाय दैट। Yes, yes, sir. No problem. ठीक है, सो हाँ, सो पेस्ट कर दे, प्ले दैट, परफेक्ट परफेक्ट, दैट्स द सेकंड वे टू प्ले द एफ मेजर कॉर्ड। ठीक है, नाउ व्हिच इज द थर्ड नोट? C. सी नोट। सी नोट कहाँ पे होता है, कौन सी फ्रेट में? Eighth note. Eighth fret. एट्थ फ्रेट। अब एट्थ फ्रेट में थर्ड शेप को पेस्ट कर दे। थर्ड शेप क्या थी? दैट्स राइट, दैट्स राइट। नाउ प्ले इट फॉर मी। परफेक्ट। सो दीज आर द थ्री ways to play an F major. ठीक है कुशाग्र, since you were ready as well, let's do quickly करते हैं। Play me a B major. Quickly, quickly. B major के नोट जल्दी बता। B major scale क्या होता है? B major. हम्म, B major sir, B, C sharp, D sharp, E, हम्म, F sharp, G sharp, then it comes C, नहीं, B से पहले क्या था? B flat, A sharp, then B. B flat बोला ना तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी मैं। तू तो मेरा क्योंकि That, स्टेज कोर्सेज का स्टूडेंट रह चुका है, सो आई नो यू बडी, सो डोंट से बी फ्लैट। बी फ्लैट इज ओनली देयर इन द एफ मेजर स्केल, रिमेंबर दैट। ओके, सो दैट्स राइट, सो इट्स एन ए शार्प एंड देन बी। ठीक है, तो हमारा तीन नोट्स हो गए, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प। बी, डी शार्प एंड एफ शार्प। तो बी नोट जो होता है, बी नोट कहां पे होता है? सेवेंथ फ्रेट में, तो वहां पे मैंने पोजीशन 1 कर दी। करेक्ट। नेक्स्ट हो गया मेरा डी शार्प। डी शार्प कहां पे होता है? 11th फ्रेट पे, वहां पे मैंने पोजीशन 3 कर दी। 11th फ्रेट, आई कांट टेढ़ा किया हुआ है बट हाँ, दैट्स द 11th फ्रेट, राइट। ठीक है, और नेक्स्ट मेरी होती है एफ शार्प। एफ शार्प कहां पे होता है मेरा? सेकंड फ्रेट ले, सेकंड फ्रेट ले, 14वां फ्रेट ना ले, सेकंड फ्रेट, वहां पे तीसरी पोजीशन कर दी। ठीक है, सो यू कैन गो पीछे एज वेल, नो यू डोंट नीड टू गो आगे ही सारा टाइम। ठीक है, तो अब हमारे को तीनों शेप्स पता लग गई। वंस अगेन ये तीनों शेप्स जो है, इसका एक पीडीएफ भी होएगा एंड आई विल बी सेंडिंग यू द पीडीएफ, सो डोंट वरी अगर कंफ्यूजन हो रही है, यू विल गेट द पीडीएफ। ठीक है, उसमें सब एक्सप्लेन किया होगा मैंने। नाउ वील कम टू द एक्चुअल इंटरेस्टिंग थिंग, दिस वाज नॉट द नाउ वील कम टू द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या है कि हम जनरली जब सॉन्ग्स प्ले करते हैं तो देयर आर कॉर्ड प्रोग्रेशंस दैट वी यूज। सो वेरी फेमस कॉर्ड प्रोग्रेशन इज अ 1-4-5 व्हिच इज आल्सो यूज्ड इन ब्लूज म्यूजिक। ठीक है, तो 1-4-5। नाउ आई वांट यू टू थिंक, अब हम पहले हम एक ही कॉर्ड को प्ले कर रहे थे अलग पोजीशंस में, नाउ हम अलग अलग कॉर्ड्स को प्ले करेंगे। नाउ दिस इज वेयर इट गेट्स अ लिटिल इंटरेस्टिंग। जब मैंने कुशाग्र से पूछा था पहले स्केल क्या होता है, तो उसने मेरे को डायटोनिक कॉर्ड्स बताने शुरू कर दिए थे। नाउ हमारे को डायटोनिक कॉर्ड्स पता होने चाहिए। निमित, डू यू नो डायटोनिक कॉर्ड्स क्या होते हैं? नहीं पता? कोई पंगा नहीं, वॉच माई मास्टर क्लास। द आंसर टू एवरी प्रॉब्लम इज वॉच द मास्टर क्लास। ओके, सो बेसिकली हमारे हर जो स्केल होता है ना, हर स्केल के नोट्स को यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड्स बना सकते हैं। ओके, सो दोज आर कॉल्ड डायटोनिक कॉर्ड्स, जो उसी स्केल के नोट से बनी हुई हैं। Right? So there's some rules that you use in order to find out the chords. Lekin we'll not get into the rules abhi. Watch the master class for that. Okay. So अगर मान लो मैं कोई भी scale लेता हूँ, let's take any key. Tell me any key. Kushagra, tell me any key in major. Or tell me any note. Any note. G sharp. G. Ideally take a natural note because people will get confused if I say F double sharp. G sharp has an F double sharp, right? So, huh? B. अच्छा, by the way, निमित के लिए, so निमित कुशाग्र ने मेरे को G sharp बोला, so G sharp का scale is, so कुशाग्र बताओ what is the G sharp scale? So G sharp, A sharp minor, B sharp minor. Scale पूछा, scale. G sharp, A sharp, B sharp, C sharp, D sharp, F major. और रुक जा, D sharp के बाद क्या आएगा? You're forgetting something. G sharp, Sir, E sharp, E sharp, then
G major back to ओ भाई D sharp. क्वालिटी नहीं बात पूछ रहा मैं. डोंट से मेजर, आई एम सेइंग नोट्स. डोंट टॉक क्वालिटी. टेल मी द नोट्स. G sharp, A sharp, B sharp, फिर C sharp, D sharp, E sharp, G sharp. अबे G sharp कैसे आ सकता है यार? इट्स नॉट डायटोनिक देन इफ यू आर यूजिंग 2 G's. F कहाँ गया? Then it will be F double sharp. F double sharp. F double sharp. Yes, sir. So निमित को मैं I'm talking to निमित in particular because he said E sharp नहीं होता ना, and कुशाग्रे ने जो एग्जांपल लिया उसमें E sharp होता है. So it's don't say कि E sharp नहीं होता because it actually is there. It's just a context. Okay, but if you're getting confused, don't worry. This is covered in my stage 3 course. Stage 3 course, my PMT course, my modes course, all of these courses cover all of these concepts. Okay, so just letting you know. Okay, so let's take a simple example. Let's take F major only. हमने भी F major की बात करी ना, तो F major में 1 chord होती है F major. ठीक है, 4 chord कौन सी होती है? C major. F A C. C is the 5th. 4 chord is F G A B flat major. So F major is 1 chord, B flat major is the 4 chord, C major is the 5th chord. If you guys are not understanding, again watch the masterclass. It's covered. Everything is covered. Okay, so 3 chords होती हैं F major, B flat major and C major. तो हमारे को मान लो ये तीनों chords play करनी है. ठीक है, अगर ये तीनों 1 4 5 बिकॉज ये बहुत सारे सॉन्ग्स में यूज होता है 1 4 5, तो हम क्या करेंगे, हम पहले अपनी 1 chord प्ले करेंगे. तो 1 chord मेरी है F major. अब F major मैं 3 पोजीशंस में प्ले कर सकता हूं. सो आई विल जस्ट टेक व्हाटएवर कम्स टू माय माइंड. चलो लेट मी टेक द रेफरेंस नोट बीइंग द रूट ऑन द फर्स्ट स्ट्रिंग. तो मेरी F major ये होगी पहली फ्रेट पे. सॉरी. ओके, सो दिस इज माय F major. ठीक है, अब नेक्स्ट कॉर्ड मेरे को प्ले करनी है A major, सॉरी B flat major. F major, B flat major and C major. अब I can play a B flat major like this, and then मेरे को play करनी है C major. I can play it like this, right? I'm playing all of these chords with the reference note being the root on the first string. So F major, B flat major, C major. I can play it. लेकिन the beauty of the triads is I don't want there to be too much movement, right? जैसे jazz music होता है, jazz music में एक सेकंड निमित, jazz music में there are a lot of chords that you need to play, so you can't keep moving like this. ये सब नहीं हो सकता. So you need to find chords which are very close. So this is where triads will help you. हाँ निमित बोलो यार. So sir, just a small clarification I need, sir. बोलो, बोलो. मतलब whenever I'm playing a triad with the root on the first string, Right. तो वो अपना main major chord हो जाता है, root chord हो जाता है. The second is कि जब अपना third note रहेगा, we are playing it on the first string, it becomes the first inversion. Correct. और वो chord हो जाएगा, बन Correct. जाएगा. Correct. Right? Like F major वाला बनेगा F, A and C. So A, if I'm playing that shape, then it will become the A major chord. And third, जो अपना fifth note रहेगा, if I'm playing it on the first string, then it will become the C major chord. मतलब F A C that way. Okay, so no. Am I correct? No, you're not correct. So first of all, don't use inversions with this. Don't say this is the second inversion, because inversion के लिए हमारे को lowest note देखना है. अभी हम lowest note को नहीं देख रहे. The reason why I told you about inversions was because I wanted you to understand that from a theoretical standpoint. जब हमारी reference note is the, I'll address your question in multiple parts. पहली चीज तो, if your reference note is the first root on the first string, then you're technically playing the second inversion. Theoretically, because हमारा जो top note है, that's the second inversion. No, it's not second. It's a third. Sorry, the first inversion. It's the first inversion. My bad. इधर देख मैं समझा रहा हूँ. ये मैंने F major पकड़ी ना, F major मैंने play करी, तो inversion देखने के लिए मैं देखूंगा मेरा lowest note कौन सा है. Lowest note कौन सा भी है? A play करो ना, A. तो अगर A is the lowest note, then it's my first inversion, right? So अभी उस पे मत घुस, अभी inversions को मत देख, वो theoretically समझ जा. अभी मैं play करना सिखा रहा हूं. Now I'll come to the second part of your question, which is कि this is an F major. If I play the reference note being the third, which was A, then I'm still playing an F major only.
लेकिन my reference note is the third. Now if I play the reference note being the fifth, which is a C, I'm still playing an F major only. I'm not playing a C major. I'm playing an F major. So all three chords are different variations basically of the F major chord. Correct, because the notes तो मैं F A C play कर रहा हूँ ना. C major के लिए I need to play a C E G. समझ ठीक है, so I'm playing the F major only in different ways. लेकिन मेरी order of the notes is different. And understand something, these are not inversions. So this is not the first inversion. Sorry, this is the first inversion. This is not the root position. That's what I meant. This is not the root position. My root is on the first string, लेकिन my lowest note is the third. So technically this is my first inversion. But I don't want you to think of it like an inversion, क्योंकि inversion के लिए हमारे को third string का पता होना चाहिए note क्या है. वो हमारे को generally याद नहीं रहेगा. Okay, so this is technically the first inversion. जब मैं ये play करता हूँ, third वाला, this is technically my second inversion. और जब मैं C play करता हूँ, this is technically my root position. But I don't want. बोल. मैं हाँ कुछ you about to say something no? इसलिए मैं बोला बोल. अच्छा तो ऐसे किया तूने यार, तो मेरे को लगा कुछ बोलना चाहता है. Okay, now okay, so ठीक है, so अभी inversions मत समझो, inversions theoretically समझ जाओ, but we'll see how to play them. Okay, now अब मेरे को play करना था F, B flat and C, तो मैंने F ऐसे play करा. अब B flat मैं इधर नहीं play करूंगा. I'll try to play a B flat आसपास ही कहीं. अब B flat is गलत example हो गया because you'll just get confused with B flat. But can anyone tell me the B flat scale? Or at least tell me the first, third, and fifth of B flat. B flat. B flat. B flat, D and F. B flat, D and F. B flat, D and F. Perfect. Right? So B flat, D and F. तो ये तीन नोट्स होते हैं B flat मेजर के. अब हमारे इन तीन नोट्स में कोई नोट है जो इसके आसपास ही है, F के आसपास. F करेक्ट, F नोट आ रहा है. अब F नोट B फ्लैट में कौन सा वो होता है? इट्स द थर्ड, फिफ्थ. थर्ड मतलब तीसरा नोट है, इट्स द फिफ्थ, राइट? सो अगर मेरे को दैट्स गुड मुरली, गुड. सो अब अगर मेरे को B फ्लैट मेजर प्ले करनी है, सो आई नो कि उसका जो फिफ्थ नोट है विच इज F, वो आसपास ही है. सो ऑल आई नीड टू डू इज प्ले दिस शेप, राइट? So basically this is another way to play B flat major, right? With the reference being the fifth. बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? So this was my F major and this is my B flat major with the reference being the fifth on the first string. Now तीसरी chord मेरे को play करनी थी C major. अब C major में notes होते हैं C, E and G. अब कौन सा नोट है इन तीनों में C, E, G में से जो F के आसपास आता है? E. You can also say G, लेकिन G हम नहीं करेंगे, हम E करते हैं because E is the third of C major, right? So अब अगर मेरे को E पे थर्ड प्ले करना है तो वो मेरी शेप क्या आएगी? It'll be a D major shape, लेकिन मेरा ओपन पे आ रहा है. E is the open string, right? So this is what I'll play, or rather this is what I'll play. 12th fret पे इसको मैं ऐसे प्ले कर सकता हूँ ना, सेम बात वही है. Actually F major was a bad example because F major में B flat भी आ गया और open भी आ गया, तो तुम्हारे को लगेगा यार ये कौन सी शेप है. This is actually the D major shape only, लेकिन मैंने एक फ्रेट पीछे, 2 फ्रेट पीछे लेके चला गया. It's a D major shape only, right? या अगर मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ, 12th फ्रेट के आगे प्ले करता हूँ, this is my F major, this is my B flat major and this is my C major. C major में with the reference note being the third, E on the first string. So the beauty of triads is instead of playing it आगे पीछे मैं एक ही पोजीशन में पास सारे तीनों 1 4 5 प्ले कर सकता हूं. So I would have actually played an F major, B flat major, C major like this. F major, then a B flat major, and then a C major. Now I'm playing it like this.
So I'm barely moving, but I'm getting those 3 chords की shapes just thanks to using a little bit of theory and using my triad knowledge. ठीक है? Now this is one way. ये सब जो होगा ये सब भी मैं PDF में डाल दूंगा. Okay, so everything is going to be in the PDF. Now another way to play the same progression F major, B flat major and C major is by taking the F का reference note being the third. अभी हमने F का सिर्फ 1 पोजीशन पे लिया ना, रूट पे लिया. अब मान लो मेरे को F दूसरी प्ले करनी है जिसमें थर्ड इज द रेफरेंस नोट. तो F मेजर के मेरे नोट से F, A एंड C. तो मेरी दूसरी वे टू प्ले एन F मेजर वाज दिस. दिस वाज द सेकंड वे टू प्ले एन F, राइट, जिसमें मेरा रेफरेंस नोट इज द A, इज द थर्ड ऑन द फर्स्ट स्ट्रिंग. तो मैं A के रेफरेंस में कर रहा हूं ना. इफ दिस इज माई F मेजर, अब मुझे B फ्लैट का प्ले करना है. अब B फ्लैट के नोट्स जो थे B फ्लैट, D एंड F, कोई नोट है जो A के आसपास ही है? B फ्लैट A के आसपास है, करेक्ट. कहां पे होता है B फ्लैट? A फ्लैट A के नेक्स्ट नोट होता है, राइट. सो ये मेरा A F था. अब मेरा नोट नेक्स्ट नोट है B फ्लैट. अब B फ्लैट मेरा B फ्लैट कॉर्ड के कौन सी पोजीशन पे है? रूट पे है कि थर्ड है कि फिफ्थ है? रूट है ना. सो आई विल प्ले B फ्लैट लाइक दिस. सो मेरी B फ्लैट कॉर्ड ऐसे होगी ना, बिकॉज B फ्लैट नोट मेरा रूट है. सो ये मेरा F था, ये मेरा B फ्लैट हो गया, और तीसरी कॉर्ड थी मेरी C. अब C जो है, C A के आसपास कोई नोट है? C के 3 नोट्स, C, E एंड G में से G पीछे है, 2 पीछे, A के 2 पीछे G है. तो यहां पे मैंने अपनी 5th पोजीशन ऑफ C प्ले कर दी. तो नेटेड मेरी F मेजर, B फ्लैट, C मेजर होगी. F, then B flat, then C. Sorry. It's the same thing. Right? Now there is a third position as well. Third position होगी मेरी F major with the reference being the 5th. वो था मेरा C note. अब C note मेरा कहां पे होता है? C note is my this note, 8th fret. यहां पे मैंने F major ऐसे प्ले करी है. This is my F major. अब मेरे को हाँ जैकलिन, sorry? I hear the guitar being played. Are you playing some strings? We can't hear the guitar. Playing it. You can't hear. Can the other guys hear the guitar? No. No, sir. अच्छा, आवाज कर. So Jacqueline, we have another 7 minutes left in the class. I think it's a little too late to be reminding me of the fact that you can't hear my guitar. If you could see me, you should have actually known that I'm actually playing something. But it's okay. That's all right. I thought you were singing on mute, but then I realized no, it's not on mute. तो तुम्हारे को मेरी आवाज सुन रही है कि नहीं सुन रही? Can you hear what I'm saying? Yeah. You can चलो. hear what you're saying. I thought कि तुम्हें लग रहा है कि मैं डमशराज कर रहा हूँ. 1 word, 2 B major, F major. But don't worry, it's okay. So it's anyways getting recorded. So you watch the recording. Next couple of hours में recording is going to be there in the live section of the academy. So watch the recording. Anyways, the PDF will get sent to you in the next 15-20 minutes. Okay? So I don't know why this problem is there, यार, कि आपको सुन नहीं रहा. But next time maybe I'll just use a mic or something. I'll use an external mic so that I'm a little clear. But yeah, so we are playing the F major, B flat major and the C major. अब हमारे को F major हम play करेंगे अपनी third shape. Third shape होती है जिसमें हमारा reference note is the 5th of F. तो वो होता है हमारा C note. C note होता है हमारा 8th fret. अब यहाँ पे हमारी F major की ये shape होगी. ये F major बजा रहा हूँ मैं. Okay? Now next chord मेरे को play करनी है B flat major. अब B flat major का कौन सा note होता है जो C के आसपास होता है? This is F major. कोई भी बता दो यार. I'm sorry, मुरली you tell me यार. D. So अगर हमारे को D play करना है तो D is 2 आगे. Right?
मुरली म्यूट पे कर ले अपने आप को यार. हाँ, ओके. सो ये मेरा D 2 फ्लैट आगे आ गया. तो D is the third note of B flat, right? So this will be my B flat. This was F major. This is B flat major. अब नेक्स्ट नोट है मेरा C. C मेजर मेरे नोट्स होते हैं C, E and G. तो मेरा C एज इट इज C नोट जो होता है, यहां पे मैं प्ले करूंगा पोजिशन 1 C. सो देन नेट मेरी जो 3 कॉर्ड्स हो गई B फ्लैट, F मेजर, B फ्लैट एंड C मेजर, दे विल बी right. So if I were to just summarize, if I have to play F major, B flat major and C major in 3 positions, I can play this one. This is reference note of F being the first on the first the root on the first string, so it will be F, B flat, C. The second way to play is the reference note of F being the third on the first string, which will be this. और तीसरा तरीका है with the reference note of F being the fifth on the first string, it will be Can't hear the guitar. not a problem. So see the video अगर नहीं सुन रहा तो, but we'll fix it. I don't know, the other class didn't really have this issue. If you can't hear, then you know I'll use an external mic in the next class. But have you understood the concept at least? अभी shapes वगैरह दिमाग में नहीं होंगी. Shapes को practice करना पड़ेगा. Shapes के लिए वो PDF देखना, class की recording देखना, सब समझ में आ जाएगा. It's not a difficult topic, believe me. But it's just that we conventionally don't work on triads. Yeah, Jacqueline, tell me. Where do you use this kind of a shape and position? So- Where is it normally used? Good question. देखो, it's like saying कि when do you use a bar shape? It's totally dependent on you. लेकिन अगर मेरे से कोई पूछेगा, so generally people don't play this. I can guarantee on this, if you speak to 100 guitar players, not more than 2 or 3 will know how to play triads. क्योंकि हम सबको normal open chords ही play करनी आती हैं, bar chords play करनी आती हैं. So I would say if let's say I'm in a band setting and एक guitar player मेरा C major ऐसे play कर रहा है, so I can actually do this. I can play थोड़ा सा different. Or if let's say, because you don't want 2 guitar players to be playing the same thing, no? So one guy is playing the bassier notes, one guy is playing the treble notes, so to speak. तो थोड़ा सा different feel आ जाएगा. Yeah, if you want, you're actually, if you're the only person who's playing the guitar, then शुरू में जैसे अगर मेरे को play करना है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, अगर मेरे को ये chords play करने हैं, तो शुरू में I can actually start playing यहाँ पे. I can start. I don't want to play this right now because वो A minor वगैरह आपको मैंने shape सिखाई नहीं है अभी. But I'm just saying कि you can start off with playing triads and then you suddenly move to normal chords. So I'm saying at the end of the day, it's your own creativity कि आप किस तरह से इसे use करते हैं. लेकिन jazz music में क्या होता है कि there is जो jazz trios होते हैं, so this is actually a concept called comping in jazz music. उसमें क्या होता है कि जो bass player होता है, he plays the bass. तो jazz जब when there is a lot of people, जब एक orchestra में बहुत सारे लोग होते हैं ना, then you don't really want to play the same note. A lot of people don't want to play the same note because mix हो जाता है. ये भी bass play कर रहा है, इसका भी bass note आ रहा है. So generally क्या होता है कि एक bass player bass play करता है, jazz जो guitar player होता है वो सिर्फ treble के notes play करता है. He doesn't play the bass notes. Rootless chords कहते हैं, उसे root नहीं play करता because he doesn't want there to be a clash, right? So I'm saying कि you can use the same thing कि एक बंदा कुछ play कर रहा है, एक बंदा कुछ और play कर रहा है because harmonize हो रहा है एक तरह से. Okay? But it's your own creativity. जैसे मर्जी play कर सकते हो. You can have one guy playing this F major like this. One guy can be playing F major like this as well. That will also be a nice harmony. Right? One guy is playing an F major like this. The other guitar player is playing this. It might just mix together and give a nice sound. Questions? Any question? Ideally topic related, but अगर
टॉपिक रिलेटेड नहीं भी है तो यू फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस है. मूवमेंट मिनिमाइज हो सकती है इसकी वजह से, राइट? मूवमेंट मिनिमाइज, Fretboard पे हाँ करेक्ट. जैसे हमने अभी देखा ना, ऑल द कॉर्ड्स वर वेरी क्लोज. एंड द अदर थिंग इज मुरली, अगेन थिंक ऑफ इट, जब व्हेन यू आर प्लेइंग म्यूजिक, नो देयर आर नो रूल्स हियर. Maybe you want to play distant chords. Maybe you want that as an effect. But I'm just saying कि हमारे पास टूल्स सारे होने चाहिए कि अगर मेरे को नहीं करना तो मेरे को पता होना चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसे मैं प्ले कर सकता हूँ. ठीक है. एंड जैसे मैं बता रहा था, वॉइस लीडिंग होती है जैज में, कॉन्सेप्ट होता है वॉइस लीडिंग में. बेसिकली वॉइस लीडिंग के 2 डेफिनेशन होती है. एक तो होता है कि आप हाईएस्ट नोट जो है, जैसे इस केस में हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग पे जो नोट था वो हाईएस्ट नोट था, उस नोट के थ्रू आप मेलोडी बना रहे हो, कोई मतलब कॉर्ड्स आप प्ले कर रहे हो, लेकिन वो कॉर्ड्स की भी एक मेलोडी बन रही है, ट्यून बन रही है, टी 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 टो 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 टो. ठीक है. तो आप जैसे अगर मेरे को गाना प्ले करना है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, तो टन 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 टन, दिस इज मेलोडी, राइट? लेकिन आई कैन ऑल्सो, अगर आप जैज म्यूजिशियन को बोलोगे ही विल प्ले झरन 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 झरन, ही इज एक्चुअली प्लेइंग कॉर्ड्स, राइट? बट ऑल दोस कॉर्ड्स आर ऑल्सो स्पेलिंग आउट अ मेलोडी. झरन 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 झरन. That's voice leading. He's using the melody, the highest note of the chord to outline the melody. That's voice leading. तो voice leading की एक definition ये होती है कि आपने highest note से melody बनाई. एक और definition ये होती है कि when you're playing, you don't want there to be too much distance between the chords. So you want them to be as close to each other as possible. So this is where that kind of voice leading helps. Cool. Okay, so no more questions. Aditya, again, don't worry. अगर तुम stage 1 के भी student होते, I would have still asked you to focus on this because, like, I don't know if you were there or not. मैंने पहले बताया भी था कि I've actually started a few students पहले जिनको मैंने normal chords नहीं सिखाई, उनको मैंने triad सिखाया था. So don't worry. Watch the masterclass videos. Watch the recording of this video as well. If you want, मैं दोनों बैच 1 एंड बैच 2 दोनों की रिकॉर्डिंग्स डाल रहा हूँ. सो बैच 1 की रिकॉर्डिंग मैंने अब तक डाली नहीं थी बिकॉज अगर मैं डाल देता तो आप सबने पहली क्लास देख ली होती. यू वुड बीन लाइक, ये तो हमने पहले दूसरी क्लास का बैच देख लिया है. सो यू विल एक्चुअली गेट एक्सेस टू 2 रिकॉर्डिंग्स टुडे, बैच 1 ट्रायड्स एंड बैच 2 ट्रायड्स. सो यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल बिकॉज आपको उनके क्वेश्चंस पता लगेंगे, उनके क्वेश्चंस क्या थे. Cool. Okay, so Jacqueline, you're saying something? No, I just said thank you. No worries. But next time, please don't remind me or don't point out कि गिटार सुन ही नहीं रहा जब क्लास खत्म होने वाली होगी. I sing with my system and everyone's able to hear because nobody said anything. यार पर you guys couldn't hear my guitar at all क्या? मतलब I'm amazed यार. No, it was there but very little. I mean, and I was thinking maybe the issue with my network, so I was just concentrating more to hear that little sound. Then I thought, okay. So everybody thought कि issue मेरे साथ, मतलब उनके साथ ही है. So I don't know यार. I really have no idea कि ऐसा issue क्यों है because this is the first time I've actually come across an issue. So Jacqueline, you were there in the previous classes as well. पहले तो गिटार सुनता था कि नहीं सुनता था? No, in the previous class we were able to hear. You were able to hear. So maybe, but you can hear me, right? You can hear me. So it's not a hardware issue. It's probably I need to bring the guitar a little closer to the mic and then play. Could be that. Not a problem. Chalo, in any case, the recording is there. Watch the recording. See the masterclass videos. सब एकदम clear हो जाएगा. ठीक है? तो next. Sir, I want to ask one thing. बोलो यार, बोलो. When I once like मेरा गिटार का एक्शन जो है वो थोड़ा ऊपर आ गया था, मतलब मेरा गिटार की स्ट्रिंग्स बहुत टाइट हो गई थी. अच्छा. तो मैंने जब उन्हें रिपेयर करवाया तो जो वहाँ पे शॉपकीपर थे उन्होंने बोला कि आपको हमेशा अनट्यून और ट्यून करके रखना पड़ेगा. जब आप छोड़ोगे तो उसे अनट्यून करना है और जब आप प्ले करोगे तो उसे ट्यून करना है. तो सच में नेसेसरी है क्या? एक बार मैंने कहा मेरी स्ट्रिंग टूट गई थी. अच्छा, जो दुकानदार से क्या था वो ब्रेड बेचता है क्या वो, कि कोई म्यूजिक वाली शॉप में गया था? म्यूजिक वाली शॉप. Okay, no. So if your guitar has a truss rod, वो देख रहा है जो मेरा ये गिटार है, ये गिटार. Yes sir. ये गिटार is an Ashton का गिटार. It's not a good guitar. मतलब it's like
7,000-8,000 रुपीज का गिटार होता है, ठीक है. इट्स नॉट अ ग्रेट गिटार, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ये गिटार मैंने पिछले 1 साल से हाथ भी नहीं लगाया है, ये अभी भी ट्यून्ड ही है. नेवर अनट्यून योर गिटार. द ओनली टाइम व्हेन आई अनट्यून माई गिटार इज अगर मेरे को फ्लाइट में उसको ट्रैवल करके लेके जाना है और मेरे को चेक इन करना है. अगर मैं अपने पास रखता हूँ कैबेज में, तब कैबेज बोल रहा हूँ, कैबिन में, कैबिन बैगेज. सो अगर मैं कैबेज में अपने साथ गिटार रखता हूँ, तब भी मैं उसे ट्यून नहीं करता, डिट्यून नहीं करता. इफ योर गिटार डज नॉट हैव अ ट्रस्ट रॉड इन इट, तब हो सकता है कि थोड़ा सा पंगा हो जाए, एंड इसलिए आई माइट जस्ट अनट्यून इट अगर मैं काफी महीने प्ले नहीं कर रहा. लेकिन ऐसा कभी नहीं होएगा कि मैं रात को अनट्यून करूंगा फिर सुबह मैं ट्यून करूंगा, तो भाई दिमाग खराब हो जाएगा मेरा. गिटार भी बेचारा बोलेगा भाई तू रहने दे, वापस कर दे मेरे को. सो नेवर डिट्यून एंड रीट्यून योर गिटार when you're not playing. If you're not playing for an extended period of time, if your guitar does not have a truss rod, तब मैं हो सकता है अनट्यून करके रख दूं थोड़ा सा. Because remember, it's not about what I say or the shopkeeper says. Understand the physics of a guitar. जब आपका गिटार ट्यून्ड होता है ना, it's in harmony. आपकी ट्रस रॉड गिटार की स्ट्रिंग्स को, गिटार की नेक को पीछे खींचती है, आपकी स्ट्रिंग्स गिटार के नेक को आगे खींचती है अपनी तरफ. तो जब गिटार ट्यून्ड होता है, इट्स इन हार्मनी राइट नाउ. अगर आपने अनट्यून कर दिया तो बेसिकली आपका गिटार इस तरफ होने के चांसेस में, क्योंकि स्ट्रिंग्स की कुछ टेंशन ही नहीं है, तो जो ट्रस रॉड है अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगी. ये फिर ऐसे होने लग जाएगा, जो नेक होएगा ऐसे मुड़ने लग जाएगा. अगर गिटार बहुत टाइट करोगे तो ऐसे हो जाएगा, अनबैलेंस, इम्बैलेंस, व्हाटएवर दैट वर्ड इज. ठीक है, व्हेन ट्यून्ड है इट्स इन बैलेंस राइट नाउ, सो लेट इट बी इन बैलेंस. जस्ट अंडरस्टैंड द फिजिक्स मैन. Got it? Then he might have sold bread only. क्या? तो शॉपकीपर शायद ब्रेड ही बेचता है. हाँ, ब्रेड तो गलती तेरी है ना, ब्रेड वाले पास क्यों जा रहा है फिर गिटार की एडवाइस लेने के लिए. But it's okay, यार. A lot of people have this misconception. That's the issue here. That's the issue that people have partial knowledge and वो फिर उसके हिसाब से सुन के सब बोलते रहते हैं. But that's okay. That's all right. You have me. Any more questions? What you will be teaching in the next class next week? मैं अभी बता देता हूँ, but don't worry. I don't want you to prepare it. ठीक है? The next class में हम minor chords करने वाले हैं. Because once we know the minor triads as well, then we can play any progression. ठीक है? लेकिन and it's a very simple exercise यार. You can actually work out the minor triads on your own. लेकिन I still don't want you to do that because मैं चाहता हूँ कि जो मेजर है उसको पहले इंटरनलाइज करो. हमारी गलती क्या होती है, हम ना बहुत सारी चीजें सीखना चाहते हैं, बट जो सीखते हैं वो हमारे को याद नहीं रहता. सो फॉर द नेक्स्ट 1 week जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन मेजर कॉर्ड्स. खुद अपने आप को चेक करो, अच्छा मेरे को ये कॉर्ड प्ले करनी है ऐसे 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 ऐसे. सो स्टेप सेम रहेंगे. उस कॉर्ड के नोट्स क्या होने चाहिए, सेकेंड स्टेप उस नोट्स को कहाँ कहाँ पे प्लॉट करोगे, शेप्स को प्लेस कर दिया. जस्ट डू दैट. बी एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट ऑन दैट कि एकदम से पटाख से मेरे शेप निकल जाए. दैट्स इट. और कुछ मत करो, मतलब विद रिस्पेक्ट टू द क्लास, और कुछ मत करो. डोंट ट्राई टू फिगर आउट माइनर कॉर्ड्स ऑन योर ओन. डोंट डू दैट. वील डू दैट इन द नेक्स्ट क्लास. Any more questions or should we call it a day? No more questions. No more questions? चलो, cool है फिर guys. Thank you so much for being a part of the class. Record जो PDF होएगा आपको 5 मिनट में मिल जाएगा. अभी रिकॉर्डिंग होएगी वो आज शाम तक अपलोड हो जाएगी दोनों बैचेस की. ठीक है? Thank you, sir. No worries. चलो, Thank you. see you. Bye. Bye, sir. Thank you, sir. No worries.